Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to class 11 Board series where we are discussing advanced English, and the topic that we are going to discuss today is from the play Abraham Lincoln, and the question is this. Okay, this is basically a past paper question and answer, and ये जो notes हैं ये basically मेरे अपने notes थे जो मैंने बनाए थे when I was an advanced English student, लेकिन I want to share it with you guys now because there are no people teaching advanced English. अज़ान हो रही है तो अज़ान के बाद स्टार्ट करते हैं. Alright, so here we have a short question and answer. Why was President Lincoln against the business of slavery? ये question and answers मैंने आपके पास पेपर्स से निकाले हैं, उनके मैंने आंसर्स भी लिखे हैं जो मेरे टीचर ने भी चेक करके रखे हैं. तो we're gonna start with these. Now let us start with the explanation. This is the question. साथ साथ आप लोग ना screenshots लेते जाइएगा कि ताकि आपको आखिर में मुश्किल ना हो एंड आपके पास सारे नोट्स भी गैदर हो जाए. ठीक है. Abraham Lincoln believed that all men are born equal. It does not depend on their race, caste or color that they are treated inferior. He believed कि सारे मर्द औरत हर कोई बराबर है. ठीक है. और ये उसके कास्ट, कलर या क्रीड पे डिपेंड नहीं करता कि कौन इन्फीरियर है कौन सुपीरियर है. ठीक है. और ये इसने कहा था. इस तरीके से आप अगर कोट्स डालेंगे ना तो आपका ऐसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके अच्छे हो जाएंगे. यू कैन गेन वेरी नाइस मार्क्स इफ़ यू डू इट लाइक दिस. द असर्शन दैट ऑल मैन आर बॉर्न equal was of no practical use in effecting one separation from Great Britain, and it was placed in the declaration not for that but for future use. अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि men are born equal, ये चीज़ हमने यूज़ नहीं की, बट ये कह रहा है कि we will use it in the future. क्यों? Because civil war होगी अमेरिका में, and then Lincoln साइड लेगा किसकी? of the slaves, and he will ensure that कोई भी इंसान किसी भी इंसान के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी नहीं हो रही. ठीक है. He stood up for the rights of the people of South America who were made slaves and oppressed by North America, as he believed that a person's color or race does not make him inferior. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि ये खड़ा हुआ था किसके लिए? फॉर द पीपल ऑफ साउथ अमेरिका. ठीक है. जिनको उन्होंने स्लेव्स बना दिया था और उनको अप्रेस किया था. किसने अप्रेस किया था? बाय नॉर्थ अमेरिका. बेसिकली दे वर द नेग्रो मैन हु वर द ब्लैक मैन, एंड उनको अप्रेस किया गया था. ठीक है. For the people of North America, he said, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. ये कह रहा है कि जो लोग खुद फ्रीडम डिनाई करते हैं वो खुद भी फ्रीडम डिज़र्व नहीं करते. ठीक है. जो लोग कहते हैं कि स्लेवरी होनी चाहिए, स्लेवरी अबॉलिश नहीं होनी चाहिए, स्लेवरी ठीक है, तो फिर दे ऑल्सो डू नॉट डिज़र्व फ्रीडम. ओके. आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा. He believed that men are born equal and they are free in human rights. ठीक है. हर इंसान इक्वल है, फ्री है ह्यूमन राइट्स में. एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली द आर्टिकल 1 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. ओके. Due to this belief, a civil war started between the North and South America to stop slave trade, and Abraham succeeded in his mission. अभी क्या हुआ यहाँ पे? एक civil war start हो गई किसके बीच में? Between the North America and South America. क्यों? क्योंकि he wanted to abolish slavery, right? Due to this thinking, he became one of the most distinguished figures of America. ये क्या बन गया? एक distinguished figure बन गया किसका? अमेरिका का. After the war, Abraham, आप screenshot ले लें पहले, फिर let's move on. After the war, Abraham gave a victory speech, which is known as the Gettysburg Address. अच्छा, ये चीज़ आपके MCQs में भी आ सकती है कि what was the Gettysburg Address? Gettysburg Address कब हुआ, क्यों हुआ? तो आप ये बताओगे कि after the war between the northern and the southern people, Abraham Lincoln ने जो speech दी थी, that was known as the Gettysburg Address, and उसके अंदर he mentioned these points which were very important. तो ये मैंने सोचा कि मैं ये अपने आंसर में भी mention कर लूँ कि ताकि मेरा आंसर इम्प्रूव हो जाए, मेरे मार्क्स भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाए. ठीक है. दिस नेशन अंडर गॉड शैल हैव अ न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम, एंड दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द गेटिसबर्ग एड्रेस कि इस नेशन की एक न्यू बर्थ होगी. किसकी? ऑफ फ्रीडम. राइट. आज़ादी की एक न्यू बर्थ होगी. वाई? बिकॉज नाउ द स्लेव्स विल ऑल्सो बी फ्री. ओके. अ न्यू नेशन कंसीव्ड इन लिबर्टी एंड डेडिकेटेड टू द प्रोपोजिशन दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल. ठीक है. अब यहाँ पे ये एक प्रोपोजिशन है कि सारे मर्द इक्वल है. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गेटिसबर्ग एड्रेस. इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लीजिएगा. एग्जैक्ट वर्डिंग में आप लिख कर आएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. ठीक है.
वन डे ही पेड अ विजिट टू द न्यू ऑर्लिन्स. न्यू ऑर्लिन्स एक जगह थी जहाँ पे ये गया, जाके विजिट किया. ही सॉ अ स्लेव मार्केट वेयर नेग्रो men, women and children were chained together and bought and were being sold like cattle. He was filled with shame and disgust, and he said, "If I ever get a chance to hit that thing, I will hit it hard." ठीक है, अभी न्यू ऑर्लिन्स में गया, यहाँ पर एक मार्केट लगी हुई थी किसकी, ऑफ द स्लेव्स, एंड दे वर बीइंग बॉट एंड सोल्ड टुगेदर लाइक कैटल एंड दे वर बीइंग अब्यूज्ड एंड टॉर्चर्ड. एंड उसने ये चीज़ कही कि अगर इसको कभी मौका मिला इस चीज़ को ख़त्म करने का, तो ये इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा. ठीक है, सो दिस वॉज द होल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उनको कंपाइल करके एक आंसर अपने पास बना लें, उसको याद कर लें, उसको समझ लें. कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेडरिक डॉगलस. ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.